پر اسرار واقعات اور شیطانی قوتوں کے روبرو کسی طلسماتی وظیفے یا کسی پیر کے عصائے موجز نما کے بغیر آیات قرآنی کے ورد اور درودوں کا سہارا، سفلی طاقتوں کے خاتمے کے لیے ماتوب اور مرتد علم کا سہارا نہیں لیا، گمراہی اور اندیکھی قباحتوں میں گرے انسان کے لیے واحد سہارا خدا کی ذات اور اس کی یاد۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے دیوانہ ابلیس ایپیسوڈ نمبر 20۔ تقریباً 20 منٹ اسی پریشانی میں گزر گئے۔ پھر جب سہراب پانی کے چھینٹے مار کر شمع کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا تو ڈاکٹر ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے رسمی علیق سلیق کے بعد ان سب کو شمع کے گرد سے پرے ہٹا دیا اور اس کا معائنہ کرنے لگا، ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی پوچھتا جا رہا تھا۔ کیا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے؟ جی نہیں، دراصل کل رات ہم پشاور میں تھے۔ وہاں ہوٹل کے کمرے میں رات کے آخری پہر شمع نے کوئی خواب دیکھا، بس اس وقت سے دوسری بار اس کی یہ حالت ہوئی ہے، سہراب نے تفصیل بتائی۔ ڈاکٹر نے شمع کے پپوٹے اٹھا کر آنکھوں کے ڈھیلوں کا جائزہ لیا۔ یہ پریگننٹ ہے مسٹر سہراب، آپ کو ان کی خاص کیئر کرنی چاہیے۔ ان کے لیے کوئی بھی صدمہ ناقابل تلافی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ وہ اسٹیتھوسکوپ گلے میں ڈال کر ایمرجنسی باکس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ جی میں سمجھتا ہوں، مگر سہراب نے کہنا چاہا، ان کے پاس ہر وقت کسی ایسے فرد کا موجود ہونا بے حد ضروری ہے جو 24 گھنٹے ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہاسپٹل سے نرس کو بھجوا دوں۔ اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ارسلان، آپ ابھی یہ کام کر دیجئے۔ مجھے ہر قیمت پر صرف اور صرف شمع کی صحت اور زندگی چاہیے۔ اللہ بہتر کرے گا، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ بعض اوقات ایسے خواب کی دہشت کئی مہینے انسان کے دل و دماغ پر قابض رہتی ہے۔ ڈاکٹر ارسلان نے انجیکشن دے کر سپرڈ سویب سے شمع کا بازو ملتے ہوئے کہا، دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خواب آور انجیکشن ان کو 6 سے 8 گھنٹے کی نیند دے گا۔ میں ابھی ہاسپٹل سے نرس کا انتظام کرا دیتا ہوں۔ شام سے پہلے نرس اور متعلقہ سامان یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ جس کمرے میں ان کو رکھنا چاہیں، اس میں صرف ایک بیڈ، 2 کرسیاں اور فریج رکھوا دیجئے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں ابھی یہ سب کرائے دیتا ہوں، سہراب نے جواب میں کہا۔ کوئی پرہیز، کوئی دوا دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کا ہسٹری چارٹ ساتھ بنا کر بھیجوں گا۔ رات کو میں ایک بار پھر چکر لگاؤں گا، جو ضروری ہوا میں خود طے کروں گا۔ آپ پلیز اپنے طور پر کوئی قدم نہ اٹھائیے گا۔ ڈاکٹر ارسلان نے اپنے فیملی ڈاکٹر ہونے کا پورا احساس دلایا۔ جی۔ سہراب اور فاروقی اس کے ساتھ باہر نکل آئے۔ پھر اسے رخصت کر کے وہ دوبارہ اندر پہنچے تو طاہرہ بیگم آنسو پونج رہی تھیں۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ سہراب نے ان سے گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ اگر آپ اس طرح جی چھوڑ دیں گی تو ہمارا کیا بنے گا؟ نہیں بیٹا، مجھے تم دونوں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ بس یوں ہی یہ سوچ کر دل بھر آیا کہ تم اتنے خوش و خرم گئے تھے اور کس پریشانی کو ساتھ چمٹا لائے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے محترم خاتون، فاروقی نے ان کو دلاسا دیا۔ آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، یہ سب ایک عارضی کیفیت ہے، بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ سہراب کے حکم پر آئے دوسرے ملازموں کے ساتھ مل کر فاروقی کے بالکل ساتھ والا کمرہ خالی کر دیا۔ ایک فریج، ایک بیڈ اور ایک صوفہ سیٹ وہاں منتقل کر دیا گیا۔ کھڑکیوں کے پردے فوری طور پر ہلکے رنگوں سے بدل دیے گئے۔ شام کے قریب ہاسپٹل سے کچھ لوگ آئے۔ وہ کمرے کو مکمل طور پر ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم کا روپ دے کر لوٹ گئے۔ گلوکوز ڈرپ اسٹینڈ، ادویات کا ایک ٹرے،
जिसमें इंजेक्शन लगाने से लेकर हल्की फुल्की जराही का सामान भी मौजूद था। ब्रेकफास्ट, डिस्पोजेबल सेट और ऑटोमेटिक ट्रे स्टैंड वगैरह वगैरह उन्होंने कमरे में अपनी अपनी जगह सेट कर दिया। एक नौजवान क्रिश्चियन नर्स मार्था वहाँ रह गई, जिसने लम्हों में अपनी ड्यूटी इस फुर्ती से संभाली और अदा करनी शुरू की कि सोहराब और फारूकी के साथ साथ ताहरा बेगम भी मुतमिन हो गई। बाकी अमला सलाम करके रुखसत हो गया। बेटी, अगर हर्ज ना हो तो मैं इसी कमरे में रह जाऊं। डरते डरते ताहरा बेगम ने मार्था से पूछा। माँ जी, हर्ज कोई नहीं है, वो बड़े दिलकश अंदाज में हंसी। मगर इसकी ज़रूरत भी कोई नहीं है, मैं हूँ ना। और फिर मिसेस सोहराब इस कदर बीमार भी नहीं हैं कि उनके पास किसी का रहना ज़रूरी हो। आप जाकर आराम करें। अगर मैं ज़रूरत महसूस करूँगी तो ये वादा है कि हॉस्पिटल से दूसरी नर्स नहीं बुलवाऊँगी, आपको साथ रखूँगी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हंसी बखेर दी। उसकी दिलचस्प गुफ्तगू ने उन सब को हशाश बशाश कर दिया। फारूकी को उसकी हंसमुख तबीयत बहुत अच्छी लगी। उसने मुतमिन अंदाज में सर हिलाया और सोहराब के साथ ड्राइंग रूम में चला आया। ताहरा बेगम भी कुछ देर वहाँ बैठी, फिर अपने रिहायशी हिस्से में जाकर जाए नमाज बिछा लिया। उनके पास सवाए दुआ के और कोई रास्ता नहीं था जिस पर चल कर वो सोहराब और शमा की खैरियत की ज़मानत हासिल कर सकती। फारूकी साहब, मेरी समझ में अब तक नहीं आया कि शमा ने अम्मी को उर्फा कहकर खौफ से चीख क्यों मारी थी। सोहराब ने अपनी तशवीश का इजहार किया। सीधी सी बात है भाई, कलमाशा अभी तक शमा ही को परेशान कर रहा है, ना तुम्हें ना मुझे। बस शमा के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और इसका मतलब साफ है कि उस शमा की वजह से जो नाकामी हुई है उसका बदला वो शमा से लेना चाहता है। नहीं, ये लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है। अचानक कमरे में कलंगा की आवाज़ उभरी। वो दोनों चौंक पड़े। कलंगा उनके सामने खड़ी थी। 2 कदम आगे बढ़कर उसने सोफे पर बैठते हुए सोहराब और फारूकी को गौर से देखा, फिर दोबारा गोया हुआ। बदले का लफ्ज़ ठीक नहीं है बाबू। वो शमा को मारना चाहता है, ना बदला लेना चाहता है। वो उसे पागल करना चाहता है। मगर क्यों? इससे उसे क्या हासिल? सोहराब ने तेज़ी से पूछा। वो खुद तो दीवाना है ही। अपनी नाकामी पर वो किसी दूसरे जिम्मेदार को भी होशमंद नहीं देखना चाहता। शमा की कोख में पलने वाला बच्चा उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना है, यही उसका असल मकसूद है। क्या? फारूकी बेताबी से पहलू बदल कर रह गया। उसे क्या करना चाहता है वो उसे शैतानी कुव्वतों की कुर्बान गाह पर ज़िबा करके एक बार फिर दूसरे रास्ते से अपना मकसद हासिल करना चाहता है। पैदाइश के पहले 24 घंटों में अगर मेरे मुंह में खाक वो उस बच्चे को इब्लीस पर कुर्बान कर पाए तो उसे वो कुव्वत हासिल हो जाएगी, जिसके बाद वो किसी दूसरी उर्फा को माँ बनाकर सीधे सीधे अमर शक्ति हासिल करके नाकाबिल तस्खीर हो जाएगा और उसके बाद उसे फिर किसी 2 हामला औरतों की ज़रूरत भी ना रहेगी। ये नामुमकिन है। सोहराब तैश और खौफ से लर्ज़ कर रह गया। हाँ, ये हम कह सकते हैं, मगर वो कम अयार नहीं है बाबू। कलंगा के चेहरे पर तशवीश उभर आई। हमें बहरहाल उससे मोहतात रहना होगा। वो शमा को इस कदर तेज़ ज़हनी झटके दे रहा है कि उसके दिमाग का उलट जाना कुछ बाइद नहीं है। इसका कोई हल, कोई रास्ता? फारूकी ने पूछा। सिर्फ ये कि शमा की हर वक्त 24 घंटे हिफाजत की जाए। जब वो किसी खौफनाक ख्वाब या वाक़े से दो चार हो तो उसे संभाला जाए। उसे किसी भी वक्त तन्हा ना छोड़ा जाए। ये महज एहतियातें हैं, इसके अलावा हम कुछ और नहीं कर सकते। यानी हम पूरी तरह बेबस हैं। सोहराब ने हाथ झटके। सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो कुत्ते का पिल्ला अपने बिल में घुसा हुआ है। जिस दिन सामने आकर खुल खेलेगा बाबू, उस दिन वो फना के घाट उतर जाएगा। उसे वो दीवानगी नसीब होगी जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं है। कलंगा का लहजा खौफनाक से खौफनाक तर होता चला गया। कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो या कलंगा तुम्हें छोड़ भागी। ना ना बाबू, अगर मेरी ये रूह
तुम्हारे किसी काम आ सकी तो यकीन रखो मैं उसे भी तुम पर निछावर कर दूंगी। तुमने मेरी उर्फा को आज़ाद कराया है, मैं तो इस दुनिया के आखिरी लम्हे तक तुम्हारी गुलामी करती रहूं, तब भी ये एहसान उतार नहीं सकती। मैं जब जब ना आऊं तो समझ लेना कि मैं उसी इब्लीस की टो में उसके पीछे या उसके लिए किसी जाल की तैयारी में लगी हूं। अच्छा, अब तुम लोग शमा के पास जाओ, उसे किसी भी हालत में अकेला ना छोड़ो, मैं फिर आऊँगी। कलंगा ने अचानक चौंकते हुए कहा। सोहराब ने उससे कुछ पूछना चाहा, मगर उसने जवाब में उसे हाथ उठाकर खामोश करा दिया। उसकी हालत अचानक अज़तराब का शिकार हो गई थी। तुम लोग शमा के पास जाओ बाबू, मैं फिर आऊँगी, उसने इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए कहा। फिर एकदम वो नापीद हो गई। सोहराब और फारूकी उठे और तेज़ी से कमरे से बाहर निकल आए। उसी वक्त नर्स ने उनको पुकारा, मिस्टर सोहराब जल्दी से आइए। और फारूकी और सोहराब ने शमा के कमरे की जानब दौड़ सी लगा दी। शमा होश में आ चुकी थी और चेहरा दोनों हाथों में छुपाए हिचकियां ले रही थी। सोहराब ने उसे बेहद दिलासे दिए। फारूकी ने हिम्मत बंधाई, मगर वह संभल ही ना पा रही थी। सोहराब और नर्स ने एक दूसरे को देखा। आंखों आंखों में सोहराब ने उसे इजाज़त दी और वो खामोशी से नींद का इंजेक्शन तैयार करने लगी। डॉक्टर अरसलान ने उसे यही हदायत दी थी कि अगर शमा की हालत किसी भी जाविये से ख़राब हो तो उसे नींद आवर इंजेक्शन दे दिया जाए। शमा जान, प्लीज़ क्यों खुद को हलकान कर रही हो? खामोश हो जाओ, देखो तुम्हारी वजह से सब परेशान हैं। मैं क्या करूं सोहराब, मैं क्या करूं? मैं सोना चाहती हूं, सो नहीं सकती। जागना चाहती हूं तो कानों में उस खबीस के कहके गूंजने लगते हैं। आंखें बंद करूं तो उर्फा का खौफनाक चेहरा सामने आ जाता है, वही खौफनाक चेहरा जो मैंने ख्वाब में कल रात देखा था। वो सिसकियां लेते हुए रुक रुक कर बोली। उसी वक्त सोहराब ने मार्था को इंजेक्शन देने से रोक दिया। नहीं मिस मार्था, इसका सोना ज़्यादा ख़तरनाक है, आप प्लीज़ इंजेक्शन रहने दें। ओके मिस्टर सोहराब, ताहम डॉक्टर अरसलान की हदायत यही थी। आप फिक्र ना करें, वो अभी आएंगे तो मैं खुद उनसे बात करूंगा। आपकी जिम्मेदारी पूरी हुई। जी। मार्था ने सिरिंज महफूज कर ली। अच्छा शमा, ये बताओ तुम अपनी अम्मी को देखकर चीखी क्यों थी? फारूकी ने इस्तफसार किया। शमा ने भीगी भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा और सहमे हुए लहजे में बोली, मुझे उनका चेहरा बिल्कुल उर्फा का चेहरा लगा था, सर मुंह फर्क ना था। यही अंदाज़ा था ना मेरा सोहराब। फारूकी ने सोहराब की जानब निगाह उठाई। जी फारूकी साहब, वो बुझे बुझे लहजे में बोला। जी छोटा ना करो सोहराब, मेरे जहन में एक बात आ रही है। हर शय का एक तोड़ होता है, हर मर्द का एक इलाज और हर इब्तदा का एक अंजाम होता है। फारूकी ने बड़े गहरे और सोच भरे अंदाज में कहा। अगर कलंगा आ जाए तो मैं उससे इस ख्याल पर बात करना चाहूँगा जो अभी अभी मेरे दिमाग में आया है, और मुझे यकीन है कि शायद हमारे अब तक के सारे मसाइल और परेशानियों का यही एक फ़ैसला कुन हल है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अचानक शमा ने बड़ी दर्द भरी आवाज़ में कहा। ना मैं कैलाश जाने की ज़िद करती, ना ये सब कुछ होता। अरे कैसी बातें कर रही हो जानम? सोहराब ने अचानक अपना मूड बदल लिया। हम जहाँ भी जाते, ये परेशानी अगर मुकद्दर थी तो उसे आकर रहना था। उसका टलना या हमारा उसे बच जाना कैसे मुमकिन था? इसलिए तुम खुद को इल्ज़ाम ना दो। आप ऐसा करें, मुझे उसके हवाले कर दें। अचानक वो सोहराब के हाथ थाम कर पागलों के से अंदाज में बोली। क्या कह रही हो शमा? सोहराब तड़प उठा। हाँ, मैं ठीक ही कह रही हूँ सोहराब, उसे मेरी ज़रूरत है ना, मुझे उसके हवाले कर दीजिए। मुझे खुद तो हलकान हो सकती हूँ, आपको परेशान नहीं देख सकती। मेरी वजह से आपके दिन रात खराब हो गए हैं। ये दुख अब सहा नहीं जाता। वो फिर बेकाबू हो गई। मत करो ऐसी बातें। सोहराब ने उसके होंठों पर हाथ रख दिया। तुम नहीं जानती तुम्हारे ये अल्फाज मेरे दिल पर क्या खंजर चला रहे हैं। फिर मैं क्या करूं सोहराब, मैं क्या करूं? वो नीम बेहोश सी हो गई। मैं आपकी मोहब्बत को कब तक सलीब देती रहूं? सुनो शमा जान, सोहराब ने कमरे में मौजूद सब लोगों को फरामोश कर दिया।
اس نے شمع کو سینے سے لگایا، اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر چہرہ اوپر کیا، آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور سرگوشی کے لہجے میں بولا، تم اگر مرو گی تو میری باہوں میں، زندہ رہو گی تو میرے ساتھ۔ آئندہ اگر تم نے ایسی کوئی بات سوچی بھی تو میں اپنی اور تمہاری جان دو کر دوں گا۔ کیا تم اپنی اور میری ایک جان کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہو گی؟ نہیں نہیں، کبھی نہیں۔ وہ بے اختیار اس سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیجئے، میں بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے اپنے پاس اپنی باہوں میں مرنے کی آس دلا کر آپ نے مجھے بچا لیا سہراب، آپ نے مجھے بچا لیا۔ وہ کہتے کہتے بالکل نرم پڑ گئی اور اس کی حواس نے پھر اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ سہراب نے اسے آہستہ سے بیڈ پر لٹا دیا۔ مارتھا لپک کر آئی اور اس کا بے ترتیب بدن سنبھالنے لگی۔ سہراب کا ستا ہوا چہرہ فاروقی کے لیے بے حد کربناک احساس کا امین تھا۔ اس نے سہراب کو شانے سے تھاما اور صوفے پر بٹھا دیا۔ خود کو سنبھالو سہراب، بس دعا کرو کلنگا جلد آ جائے، بس اس کے آنے کی دیر ہے، پھر یقیناً ہم اس الجھے ہوئے مسئلے کی بھول بھلیوں سے نکل جائیں گے۔ ایسا کیا سوجھ گیا آپ کو فاروقی بھائی؟ سہراب پھیکے سے انداز میں مسکرایا۔ ہے ایک خیال سہراب، اللہ کرے کہ میرا اندازہ درست ہو، فاروقی نے اضطراب سے جواب دیا۔ سر آپ لوگ اگر آرام کرنا چاہیں تو بے شک چلے جائیے، میں اپنی ڈیوٹی پر موجود ہوں، مارتھا نے ان کی بے آرامی کے خیال سے کہا۔ نہیں مس مارتھا، ہم بے حد آرام سے ہیں۔ شمع اب کیسی ہے؟ سہراب نے اس سے پوچھا۔ فائن سر، وہ آرام سے سو رہی ہے۔ صاحب کھانا لگا دوں؟ بابا نے کمرے کے دروازے میں کھڑے کھڑے پوچھا۔ نہیں بابا، ہم ذرا دیر بعد کھائیں گے، فاروقی نے اس کے عقب میں کھڑی کلنگا کو دیکھ کر جلدی سے کہا۔ مس مارتھا آپ پلیز کھانا کھا لیجئے، تب تک ہم یہاں موجود ہیں۔ اوکے سر۔ وہ سر ہلا کر بابا کے پیچھے باہر نکل گئی اور کلنگا کمرے میں داخل ہو گئی۔ یقیناً اس کی قوت کا یہ بہترین اظہار تھا کہ ایک ہی وقت میں وہ کسی کو دکھائی دیتی تھی اور کسی کو نہیں۔ بابا اور مارتھا اس کے وجود سے بے خبر اس کے پاس سے گزر کر ڈرائنگ روم کی جانب چلے گئے تھے۔ تم نے اچھا کیا کلنگا، میں بڑی بے تابی سے تمہارا منتظر تھا، فاروقی نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ حالانکہ وہ ان تکلفات سے بے نیاز تھی، تاہم ماحول کی نسبت سے وہ عمل پیرا رہتی تھی۔ مجھے بھی تمہاری بے چینی نے جلدی آنے پر مجبور کر دیا بابو، بولو کیا بات ہے؟ وہ صوفے پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کلنگا یہ بتاؤ کہ کلماشا کو اگر اس صورتحال میں ایسا دھچکا لگ جائے جو اس پر یہ ظاہر کرے کہ خدا ناخواستہ شمع کا بچہ ضائع ہو گیا ہے یا اس کے ہاتھ آنے سے رہ گیا ہے، تب اس کا کیا انجام ہوگا؟ وہ کسی کام کا نہیں رہے گا اور شاید اپنے ہاتھوں اپنا خاتمہ کر لے۔ کلنگا نے ایک پل کی دیر کیے بغیر جواب دیا۔ یعنی یہ سانحہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن شمع کے بچے کی طرف مایوسی اسے کسی دوسرے بچے کی طرف بھی تو مائل کر سکتی ہے۔ یہ بچہ نہ صحیح، دوسرا کوئی اور بچہ صحیح۔ نہیں، کلنگا نے سہراب کی بات کا جواب دیا، ایسا ناممکن ہے۔ دراصل وہ عرفہ کے ساتھ شمع کے بعد یا شمع سے پہلے اگر کسی اور کوکھ کا لٹیرا بن سکتا تھا تو وہ اس عورت کی کوکھ تھی جو بیچاری بے گناہ 3 سال اس کی قید میں رہنے کے بعد دم توڑ گئی۔ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ ابھی 5ویں مہینے میں تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ ہی مردہ ہو گیا۔ باقی بچی شمع، اب اس کے لیے دنیا بھر میں اگر کوئی جائے امان ہے تو وہ یہی بچہ ہے جو شمع کی کوکھ میں ہے، کیونکہ اماوس کی وہ آخری رات جس عمل سے وہ ان کو گزار رہا تھا وہ اب نہ جانے کب آئے، اور اس وقت تک نہ جانے اس کے ہاتھ میں کوئی دوسرا بچہ لگے نہ لگے۔ آخری بات یہ کہ چونکہ وہ اپنی پر اسرار خبیث قوتوں کو شمع کا چہرہ دکھا چکا ہے، اس لیے اب شمع کی جگہ کسی دوسرے بچے کا بھیٹ دیا جانا ناممکن نہیں ہے۔ چلو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ کلماشا کے پاس اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ فاروقی نے اطمینان کا سانس لیا۔ مگر میرا سوال ایک اور رخ سے اب یہ ہے کہ کلنگا اگر ہم چاہیں کہ کوئی ایسا انتظام کریں جو کلماشا پر یہ ثابت کرے کہ شمع کا بچہ اس کے قبضے میں آتے آتے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے،
तो क्या उसकी कोई सूरत है? वो फारूकी को गौर से देखते हुए बोली। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बाबू, मगर इसमें जितनी एहतियात और मेहनत दरकार है उससे ज़्यादा उसमें जान का ख़तरा है। उसकी बात किसने की है कलंगा? फारूकी ने जैसे उस आखिरी फिक्रे को बैन अस्तूर को गोल करना चाहा। तुम सिर्फ ये बताओ कि क्या ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल है। वो भी जैसे उससे मुतफिक हो गई। कैसे? सोहराब और फारूकी आगे झुक आए। हमें इसी कमरे में एक खेल खेलना होगा, कलंगा ने तेजी से कहा। कैसा खेल? ये सोहराब था। ऐसा खेल जिसमें यह साबित किया जाए कि शमा का बच्चा ज़ाया हो गया है। फिर क्या होगा? फिर जो होगा वो तुम सोच भी नहीं सकते, मगर ये तय है कि तुम लोगों की जान कल माशा से हमेशा के लिए छूट जाएगी। पक्का? फारूकी ने यकीन दहानी चाही। 100% पक्का। कलंगा ने उसे जैसे गारंटी कार्ड थमा दिया। तो ठीक है, ये खेल जल्द ही खेला जाएगा, मगर उसके लिए हमें डॉक्टर अरसलान को एतमाद में लेना होगा। वो पढ़ा लिखा जदीद साइंस का तालिब इल्म और ऐसे रूहानी मामलात को ढकोसला समझने वालों में से है। सोहराब ने फारूकी की बात के जवाब में कहा। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। कैसी मुश्किल सर? अचानक मार्था ने कमरे में कदम रखा। क्या मिसेस सोहराब के बारे में कोई बात बिगड़ गई? क्या मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन करूं? वो ऐन कलंगा के सोफे के आगे आकर खड़ी हो गई। कलंगा ने धीरे से अपनी जगह छोड़ दी और उसके पास से गुजरकर सोहराब के साथ वाले सोफे पर आ बैठी। उस तरफ आकर मार्था के बैठने या खड़े होने का अमकान बहुत कम था। अरे नहीं मिस मार्था, ऐसी कोई बात नहीं। सोहराब ने बात को गोल करना चाही। उसे साथ मिलाओ सोहराब बाबू। डॉक्टर अरसलान से ज़्यादा ये लड़की हमारे काम आ सकती है। अचानक कलंगा ने सोहराब के कान में सरगोशी की। मार्था, फारूकी ने भी कलंगा की कही सुन ली थी, इसलिए वह फ़ौरन ही अमल पर आमादा हो गया। उसने सोहराब से मशवरा करने की ज़रूरत ना समझी। हमें एक पर्सनल मामले में तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम हमें कुछ फेवर दे सकोगी? कैसा मामला सर? वो एकदम मोहतात हो गई। मैं किसी नाजायज़ सिलसिले में आपकी मदद करने से कासर रहूँगी। प्लीज़ मुझे ऐसी बात से दूर ही रखिएगा। मार्था, क्या हम लोग तुम्हें करप्ट दिखाई देते हैं? सोहराब ने उसे घूर कर देखा। नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मेरा मतलब तो ये था कि वो घबरा सी गई। मार्था, मेरे साथ आओ। अचानक फारूकी खड़ा हो गया। मैं तुम्हें समझाता हूँ। जी कहाँ सर? उसकी सहर अंगेज आंखों ने फारूकी की दुनिया तहो बाला कर दी। भाई यहीं बाहर लान में चलते हैं। फारूकी का दोस्ताना और पुरएतमाद लहजा मार्था को अंदेशों से दूर ले गया। वो मामूली सी हिचकिचाहट के बाद उसके साथ चल दी। कलंगा और सोहराब ने एक दूसरे की जानब देखा। कलंगा ने असबात में सर हिलाया और सोफे पर हस्बे आदत आलती पालती मार कर बैठ गई। देखो मार्था, फारूकी ने लान में बिछी कुर्सियों पर बैठने के बाद इत्मीनान भरे लहजे में कहा, असल बात बताने से पहले मैं चाहूँगा कि तुम्हें इन वाक़यात से आगाह कर दूँ जो हमें तुमसे मदद लेने पर उकसा रहे हैं। जी सर, मैं सुन रही हूँ। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से फारूकी के सुर्खो सफ़ेद चेहरे को देखा जहाँ सच्चाई पर फैलाए महू सकून थी। फारूकी ने मुक्त सिर मगर ज़रूरी तफसील के साथ मार्था को अब तक के वाक़यात से आगाह किया। इस सारी गुफ्तगू के दौरान मार्था मुकम्मल तौर पर खामोश रही। हाँ, कभी कभी उसके चेहरे पर खौफ और दहशत के असरात ज़रूर पैदा होते रहे, और जब फारूकी ने अपनी बात ख़त्म की तो मार्था अंदर बाहर से लर्ज़ रही थी। अनजानी कुव्वतों के पुरअसरार अमाल व अफ़वाल की कारस्तानियों से वो खासी परेशान दिखाई दे रही थी। उसने अपने कुछ खोते लबों पर ज़ुबान फेरी तो फारूकी मुस्कुरा दिया। मिस मार्था, तुम तो दहशत ज़दा हो गई। क्या ये खौफ में मुब्तला होने वाली बात नहीं है सर? वो सहमे हुए लहजे में बोली। मुझे तो आप पर हैरत है। आप बगैर किसी लालच और ज़ाती गर्ज के जान हथेली पर रखे इस सारे मामले में यूं दंदनाते फिर रहे हैं। आखिर क्यों? मार्था, फारूकी अचानक बेहद संजीदा हो गया। मैं दुनिया में अकेला हूँ, बिल्कुल तन्हा। मैं अगर किसी मकसद पर जान दे दूँ, किसी के काम आ जाऊँ, तो इससे बड़ी सआदत क्या होगी? तुम लोगों का तो मज़हब जिस मफरूज़े पर कायम है वो सीधी सादी कुर्बानी है। क्या यसु मसीह तुम्हारे ख्याल में तुम लोगों के लिए मसलूब नहीं हुए?
उसमें उनकी कौन सी ज़ाती गर्द पहना थी? वो यसु मसीह थे सर, मार्था ने जवाब दिया। आप यसु मसीह नहीं हैं। हाँ, मगर क्या उनका अमल काबिल तकलीद नहीं है? फारूकी ने फिर बात बढ़ाई। है, ज़रूर है सर, मगर आप लोग तो इस बात को मानते ही नहीं। आपके ख्याल में तो यसु को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया था और उसकी जगह किसी और को उनकी शक्ल देकर मसलूब करा दिया गया था। दुरुस्त, हमारा अकीदा यही है, मगर मार्था, क्या किसी और का मसलूब हो जाना भी इस एसार की कड़ी नहीं है जिसका दर्स सारे अल्लाह वाले देते चले आ रहे हैं? देखिए सर, मार्था बाकायदा बहस पर उतर आई। अगर आपका घर बार होता, बीवी बच्चे होते, या कम अज़ कम एक मोहब्बत करने वाली हस्ती ही आपकी ज़िंदगी में कदम रख चुकी होती, तब भी क्या आप अपनी जान को यूं ही दूसरों के लिए खतरे में डाले फिरते? मेरी बात छोड़ो मार्था, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। तुम शमा और सोहराब को देखो, वो एक दूसरे को पागलपन की हद तक चाहते हैं, मगर उसके बावजूद इस किस्से में वो मुझसे भी ज़्यादा मुलव्वस हो चुके हैं। कोई पछतावा, कोई लालच उनको डगमगा नहीं सका अब तक। और मार्था लाजवाब हो गई। मगर सर, मुझे डर लग रहा है, ना जाने आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। बिल्कुल मामूली सा काम है, इसमें ना तुम्हारा मज़हब मुलव्वस है ना ज़मीर। हमें कलमाशा को जहन्नम वासल करने के लिए तुम्हारे साथ मिलकर एक छोटा सा स्टेज सजाना है, और तुम्हारा किरदार इसमें सबसे ज़्यादा अहम है, वो भी अगर तुम हामी भर लो तब। वरना इस दरख्वास्त के साथ कि तुम मेरी कही हुई हर बात को भूल जाओ, मैं तुम्हें इस मामले में मुलव्वस होने से पहले ही आज़ाद करता हूँ। मार्था सोच में डूब गई। मुझे करना क्या होगा सर? खासी देर के बाद उसने सर उठाया और फारूकी ने उसे जो बताया वो चंद फिक्रों पर मुश्तमिल एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर मार्था का चेहरा जर्द पड़ गया। और आप इसे बिल्कुल मामूली बात कह रहे हैं? वो हैरत से बोली। हाँ मार्था, क्योंकि असल में ये सारा झूठ होगा, सरासर झूठ।